was thinking today, God was putting on my mind that God is always wanting to change us. और प्रभु ने मेरे मन में ऐसा एक ख्याल डाला कि परमेश्वर जो है हमेशा हमें बदलने के लिए इच्छा रखता है. So from the day we are born again, we come to Christ, the Lord wants to change us. वो दिन जब हम मसीह में आए थे, हम प्रभु हम जब से हमें बदल रहा है. So we see in 2 Corinthians chapter 5. दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय में देखेंगे. Verse 17. 17 वचन. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, new things have come. तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई. Yeah. So if any person, you and I, come to Jesus Christ, Christ means the anointed one. और जो कोई भी है जो परमेश्वर के पास आता है, आप या मैं, तो परमेश्वर उसको बदलना चाहता है क्योंकि परमेश्वर जो है वो एक अभिषेक किया हुआ है. Yeah. Jesus Christ has come to fill us with the Holy Spirit. That's why Jesus Christ is known as Christ or Messiah. और यीशु मसीह जो है वो एक ऐसा मसीह नहीं है जैसे कि बोला जाता है. So he changes our lives. वो हमें हमारे जीवन को बदलता है. So when we come to Christ, we become a new creature, a new creature. That means a new person. और जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम नए व्यक्ति बन जाते हैं. Our old desires are gone and new desires come. जो हमारी पुरानी इच्छाएं हैं वो चली जाती है और नई नई इच्छाएं हमारे जीवन में होती है. Old ways of thinking and doing and behaving go away and new ways we start learning. पुराने तरीके से बर्ताव करना, बोलना, बात करना वो चला जाता है और नया तरीका आ जाता है. A new creation means we have started growing now as a new person. और नई सृष्टि का मतलब ये है कि हम एक नए व्यक्ति बनकर अब बढ़ रहे हैं. Earlier we were people with earthly mindedness. Now we have a heavenly mindedness, and our heavenly mind will increase. और जैसे कि हम पृथ्वी पर की बातों पर मन लगाते थे, पर अब स्वर्गीय बातों पर मन लगाते हैं और वैसा ही बढ़ता जा रहा है. Just as a child, from a baby starts growing, we also have to grow spiritually. जैसे कि छोटा बच्चा बढ़ता है वैसे ही हमें भी आत्मिक रूप से बढ़ते जाना है. Earlier we knew the ways of the world very well, how the worldly people lived. Now we have to know how God lived, how Jesus lived and behaved like Jesus behaved. और पहले हम तो ये जानते थे कि लोग कैसे जीते हैं, संसार में कैसे रहा जाता है, और अब हम ये जानते हैं कि प्रभु कैसे जीते हैं, उन्हें क्या पसंद है. It says new things have come into our life. यहाँ पर लिखा है कि नई बातें हमारे जीवन में आ जाती है. So these new things keep on replacing all the old things. और जो नई बातें होती है, नई जो बातें होती है हमारे जीवन में, वो सारी पुरानी बातों को हटा देती है. And that's how we become changed or transformed. और इस तरीके से हमारा परिवर्तन हो जाता है, हम पूरी तरीके से बदल जाते हैं. And we are not like the people of this world. We are a special people for God. और हम इस संसार के लोगों की तरह नहीं, पर परमेश्वर के लिए बहुत ही जरूरी है. And that is known as holiness. और इसी को पवित्रता कहा जाता है. Holiness means separated from the world and separated for God. और पवित्रता का मतलब ये होता है कि संसार से अलग किया जाना और परमेश्वर के करीब आना. So all our life we should increase in holiness. और हमारा जो पूरा जीवन है वो पवित्रता में बढ़ता जाना चाहिए. So when we meet the Lord, we should be holy. जब हम प्रभु को मिले तो हमें पवित्र होना है. From the first day of our spiritual life to the last day, we should continue to remain holy and increase in holiness. पहला जो चरण है परमेश्वर के पीछे चलने का, और आखिरी चरण तक सिर्फ एक ही है कि हमें पवित्रता को बढ़ते जाना है हमारे जीवन में. In the book of 1 Corinthians, the last chapter. पहला कुरिन्थियों आखिरी अध्याय. The last chapter, 16.
Yeah, 16, chapter 16. हाँ, 16 अध्याय। Sorry, not First Corinthians. It's First Thessalonians. पहला थिस्सलुनीकियों Chapter 5, 5वां अध्याय verse 23. 23 वचन। It says, now may the God of peace himself sanctify you entirely, and may your spirit and your soul and body be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Verse 24 says, faithful is he who calls you, and he will also bring it to pass. 23 और 24 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। So this is a great encouragement for us that God is a God of peace. और ये बड़ा प्रोत्साहन है हमारे लिए कि जो प्रभु है वो शांति का परमेश्वर है। Whenever we want to do God's will, always there should be peace. जब भी हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, हमेशा हमें शांति मिलती है। Whatever decision we have to do, we have to decide in peace. जो भी कोई निर्णय हमें लेने होते हैं तो हम निर्णय ले सकते हैं शांति में। We should not have a disturbed mind. हमारा जो मन है वो गड़बड़ नहीं करता है। And our God will sanctify us. That means he will make us holy. और प्रभु जो है हमें पवित्र बनाता है। प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र बनाता है। And it says we will make us holy entirely. और वचन कहता है कि वो हमें पूरी रीति से पवित्र करता है। Every area of our life. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। When we come to the Lord, there are so many areas of our life are not under the control of the Holy Spirit. और हम जब पहली बार जब मसीह में आते हैं तो बहुत सारे जो हमारे जीवन के क्षेत्र है वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं होते हैं। Then the Holy Spirit, step by step, he leads us in peace and love. He shows us these areas that are not under obedience to God, and he tells us how to obey God. और फिर धीरे धीरे करके पवित्र आत्मा है जो है हमें बदलते हैं और बताते हैं एक एक करके कैसे प्रभु को मानना है, कैसे बातों को मानना है और शांति में जीना है। We have to God, the Holy Spirit always wants to change us for the better. और जो पवित्र आत्मा है हमेशा हमारे बेहतर के लिए ही हमें सुधार देता है। Just as a child goes to school, it keeps on changing every year for the better, grows better and better every year. He studies well. जी, जैसे कोई एक बच्चा है जो स्कूल जाता है, हर एक साल कुछ बेहतर करता है और वो स्कूल जाकर वो अपने आप को बेहतर बनाता है। And the Holy Spirit is our teacher. और जो पवित्र आत्मा है वो हमारे शिक्षक हैं। And he will teach each one of us personally. और हम में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से वो पढ़ाते हैं। He also teaches us through the fellowship through the church. और हमें सिखाते हैं कि कैसे कलीसिया में एक अच्छी संगति रखनी चाहिए। So he will teach us, give us a message for us through the church, through brothers and sisters in the church. और अपने मसीही भाई बहनों के द्वारा कलीसिया में एक संदेश के द्वारा भी हमसे बात करते हैं। So that the ultimate reason is that we should become like Jesus Christ in our character. और जो है उनका जो पूरा काम है वो यही है हमारे जीवन में कि हमें यीशु मसीह के समान बदलते जाना। And it says, may our spirit, soul and body be preserved complete. और वचन कहता है और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। Correct. So as far as possible, every day our conscience should be clear. और जहां तक हो सके हर एक दिन हमारा जो विवेक है वो शुद्ध होना चाहिए। We are not perfect, but our conscience should be perfect. हम पूरे तो सिद्ध नहीं हैं, पर हमारा विवेक जो है वो शुद्ध होना चाहिए। So whatever we are doing, there is nothing wrong in our life. That's how the Lord wants us to walk every day. और जो कुछ भी हम करें, कुछ भी गलत ना हो, यही चाहते हैं कि हम हर एक दिन प्रभु के साथ ऐसे ही चलें। It's just like a child getting 100 out of 100 in maths in first standard,
and 100 out of 100 in maths in second standard, then third standard. So as possible, that is to be perfect in conscience. To the best of our ability, we should be do well. जैसे कि एक बच्चा पहली कक्षा में 100 में से 100 लाता है गणित में, फिर दूसरी कक्षा में से भी 100 में से 100 लाता है गणित में, और तीसरी कक्षा में भी ऐसा ही होता है। वैसे ही हमें भी अपने विवेक को पूरी तरीके से शुद्ध रखना है। In second standard, the child does not know much. Only at a very low level, he is perfect. और दूसरी कक्षा में बच्चा तो ज्यादा कुछ नहीं जानता है, पर उतनी ही स्तर पे, निचले स्तर पे वो अच्छा है। So at that level, he is good. और उसी स्तर पर वो अच्छा है। And as he grows every year, he improves his level of understanding and level of perfection. और हर एक स्तर में जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो वो अपने आप को सुधारता जाता है। So the Holy Spirit is very gentle and very peaceful with each one of us and shows us step by step what is to be done. और पवित्र आत्मा हर एक हमारे स्तरों में हमारे साथ है, हमें सुधारता रहता है। So he shows us in every area how to behave like Jesus behaved. He gives us very personal tuitions and tells us what is right and what is wrong. और हर एक स्तर में प्रभु ये पवित्र आत्मा हमें बताते रहते हैं कैसे देना है, कैसे प्रभु यीशु मसीह जीते थे, कैसे प्रभु को खुश करना है। So there, as the apostle Paul said, I do my best to maintain a blameless conscience both before God and man. और प्रेरित पौलुस ये कहते हैं कि मैं अपने आप को ऐसा बनाता हूँ कि मैं मेरा विवेक शुद्ध हो हर एक दिन। That is written in Acts chapter 24 verse 16. प्रेरितों के काम 24 अध्याय। It says, in view of this, I do my best to maintain always a blameless conscience both before God and before men. 16 वचन। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। So our conscience should always be, it says, maintain a blameless conscience. I mean, there is no other, conscience does not accuse us, and we always think that whatever we are doing currently is right in the sight of God. और यहाँ पर लिखा है कि विवेक जो है हमेशा निर्दोष होना चाहिए, मतलब कि हमें दोष ठहराने वाला विवेक नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे प्रभु के सामने हमारा विवेक शुद्ध रहे। Both before God and before man. और प्रभु के सामने, साथ ही साथ मनुष्य के सामने भी। So that's how we should live every day. और इसी तरीके से रोज हमें जीना है। We may fall, but we must set it right. हम गिरेंगे पर हमें उसे तुरंत ठीक करना है। So we go back to 1 Thessalonians chapter 5. हम फिर से पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में जाएंगे। So the Holy Spirit wants to make our, verse 23, our spirit, soul and body complete. और यहाँ पर पवित्र आत्मा जो है हमारी प्राण, देह और आत्मा को पूरी तरीके से निर्दोष और सुरक्षित रखना चाहता है। So our body, we all sitting over here, we are consisting of 3 parts. और हमारे शरीर में जो जितने भी हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे शरीर में 3 हिस्से हैं। One is our spirit. पहला जो है वो आत्मा। Our spirit is also known as heart. और आत्मा जो है वो हृदय से भी जाना जाता है। And then is our soul. फिर है प्राण। And then is our body. फिर है देह। So when we die physically, then our body is separated from the soul and spirit. और जब हम मर जाएंगे तो हमारी जो देह है वो आत्मा और प्राण से अलग कर दी जाएगी। And what is spirit? और आत्मा, सॉरी ब्रदर, what is the meaning of our spirit, our heart? और आत्मा का, हमारे हृदय का अर्थ क्या है? That is our what is right deep within our attitudes and our motives. और ये हमारे मन की गहराई है, जो हमारी इच्छाएं क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है। And our ambitions in life. हमारे जीवन के लक्ष्य। And this is the thing which takes us, a man, forward wherever he takes us. What is the innermost desire? और यही है जो आगे तक जाएगा कि हमारी इच्छा क्या थी, एक मनुष्य के मन की इच्छा क्या थी। So before we came to
Christ, our spirit was dead and all the wrong spirit was there in our life. We had bad motives and bad attitudes towards people and towards God. और जब हम मसीह में नहीं थे तो हमारी जो आत्मा था वो मरा हुआ था। सारी बुरी जो आत्माएं थी वो हमारे अंदर थी। गलत लक्ष्य, गलत सोच, गलत धारणाएं। Now the Holy Spirit has come into our life and given us a clean attitude and good motives. और अब पवित्र आत्मा जो है हमें हमारे अंदर आया है, वो जो है हमारी सोच को, समझ को अच्छा बनाता है। So that is a small part in our life, and that our motive should become better and better with every passing day. और फिर ये जो हमारी जो सोच है, समझ है, हमारे जो लक्ष्य हैं, वो बेहतर से बेहतर होते जाते हैं दिन पर दिन। And God will show us many times through different situations and problems and troubles in our life that certain times our motives are not right, our attitudes are not right. और फिर रोजमर्रा के जीवन से, दुख से, परेशानियों से, मुसीबतों से जो हम होकर निकलते हैं, तो प्रभु हमें बताते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारा सोच ये देखो सही नहीं है। And that's how we get purified in our spirit, और फिर हम आत्मा में शुद्ध होते जाते हैं, so that our fellowship with the Lord can be better in spirit and in truth. और फिर हमारा जो परमेश्वर के साथ संगति है वो अच्छी हो जाती है और सच्ची हो जाती है। So our fellowship with God is in the spirit. और परमेश्वर के साथ जो संगति है वो आत्मा में होती है। We sang that beautiful song, Dil Mera Le Lo Pyare Prabhu Yeshu, तूने, and you are living in my heart. और ये गीत जो हमने गाते हैं कि दिल मेरा ले लो प्यारे यीशु, आपने ही इसको बनाया है। So yeah, so this song says that please come and live always in my heart and make my attitudes and motives clear. और ये गीत जो है वो ये कहता है कि प्रभु ये दिल जो है, मेरा हृदय आपका ही है, आपने इसे बनाया है, आप आकर रहिए और मेरे लक्ष्य को, मेरी सोच को अच्छा करिए। If our spirit is spoiled, then even everything, every part of our body also gets spoiled. यदि हमारा आत्मा नाश हो जाए तो हर एक हमारा शरीर और सब कुछ नाश हो जाएगा। Now, if our spirit is troubled or defiled, then our soul, our thinking pattern, and our behavior also changes. और हमारे जो प्राण में जो है वो हमारा सोचने का तरीका है, जैसे हम जीते हैं उस तरीका करने का तरीका। For example, if we cannot forgive a bad attitude towards somebody, cannot forgive a person. और उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, आप माफ नहीं नहीं कर पा Then what रहे। happens affects our soul. और क्या होगा कि ये हमारे प्राण पर असर करेगा। So our soul is our thinking and our emotions and what we have to, what our will. और प्राण जो है हमारी इच्छाएं हैं, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, जो हम चाहते हैं वो। Then our thinking towards that person gets bad, and then our behavior also, our emotions, so we don't get good emotions towards that person. और फिर हम गलत सोच रखेंगे उस व्यक्ति के लिए, गलत धारणाएं बन जाएगी, हम अच्छा नहीं सोचेंगे उसके लिए। And instead of trying to do the good thing, we try to do the bad thing. और अच्छा करने की बजाय हम बुरा करने लग जाएंगे। And then it affects our body, then it comes out from our mouth, we say all bad things about that person. फिर वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालेगा, फिर ये सब बातें मुंह से बाहर निकल कर आएगी। So that's why Jesus said, whatever comes from the heart defiles the man. और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कुछ मन में होता है वही मुंह पर आता है। So, but if our heart is good, then only good things will come out. Our mind also will be good, behavior also will be good, and our actions also will be good. और यदि हमारा हृदय अच्छा है तो हमारे हाव भाव, हमारा रहन सहन, हमारा बोलने का तरीका, सब कुछ अच्छा होगा। So the soul is the part of our body which is our thinking and our emotions and what our decisions are. और प्राण जो है हमारी शरीर का ही एक हिस्सा है, मतलब हमारी देह का हिस्सा है, जो हम सोचते हैं, जैसा बर्ताव करते हैं, वो सब। And then our body, then because of the soul we behave in different ways with our body. और प्राण के ही कारण अलग अलग तरीके का व्यवहार हमारे शरीर में से होकर दिखाई देता है। We behave with our eyes, with our mouth, the tongue, hands and legs. और हम फिर बर्ताव करते हैं हमारी आंखों से, हमारे बोल से, हमारे पाँव से, हाथों से। That's why we sang that song, take my life, Lord, and use it. Let my hands be for the glory of God, my feet, my tongue, everything do for the glory of God.
और जैसे कि इस गीत को भी गाते हैं कि प्रभु मेरे हाथ मेरा पैर ये सब कुछ ले लो प्रभु, ये आपकी ही महिमा के लिए है, आपके लिए है प्रभु। So after we come to the Lord, there must be a progress in our spiritual life, starting from our spirit, our soul, and our body. और ये हमारे मसीह जो जीवन है हमारा जिस जीते हैं उसकी शुरुआत है कि हमारा आत्मा प्राण और शरीर जो बदलता जाता है। And the Holy Spirit is working in our life every day. और हर एक दिन पवित्र आत्मा हमारे बदलने के लिए कार्य कर रहे हैं। That is why we must know the word of God and pray to God so the Holy Spirit can speak to us, and also in all our problems of life every day, the Holy Spirit can speak to us. और इसलिए पवित्र आत्मा रोज हमसे बात करते हैं हमारी रोजमर्रा के जीवन में, दुख में, परेशानियों में। Verse 24 says, faithful is he who calls you, and he will also bring it to pass. और 24 वचन कहता है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह And ऐसा he ही will bring करेगा। it to pass. Yeah, he will do the work. और हाँ वो कार्य करेंगे। See, the great thing to know is that God is working in our life. कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है कि प्रभु हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। And we just have to cooperate, and whatever he tells, we have to do. बस हमें सहयोग करना है, जो कुछ वो कहते हैं हमें वो करना है। 99% of the work is from God, or God expects only 1% from our life. 99% काम जो है प्रभु की ओर से हो रहा है, 1% बस हमें करना है। So that is why all the glory will go to God. और इससे ये है कि हम सारी महिमा जो है प्रभु को मिलनी चाहिए। If we cooperate with God, God can do a tremendous work in each one of our life. यदि हम सहयोग करें प्रभु का तो प्रभु अद्भुत ही रूप से हमारे जीवन में बदलाव भी देंगे, अच्छा कार्य करेंगे। He can change us from people who keep on worrying and worrying so much into people who keep on praising God. और वो बदलेंगे जो चिंता करते रहते थे, पर अब वो सिर्फ परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। Earlier we used to grumble and complain, but blame this one and blame that one. Now we don't blame. We say, thank God. God is working everything for my good. पहले तो कुड़कुड़ाते थे, बड़बड़ाते थे, शिकायतें करते थे, इस पर आरोप उस पर आरोप लगाते थे, पर अब तो ऐसा नहीं करते हैं। प्रभु की स्तुति महिमा धन्यवाद करते हैं। Earlier we talk so much about earthly things, about clothes, about dress, and about fashions, and so many about money and all these things. Now we talk less and less of that, and more about the Word of God and how to glorify the name of God everywhere. पहले तो संसार की चीजों में मन लगा हुआ था, क्या पहने, क्या खाएं, कैसे हमें अच्छा बोले लोग, पर अब ऐसा नहीं है। हम प्रभु को महिमा देने के लिए कार्य करते हैं। And this is the change God wants us to do. God wants to do in each one of our lives. और यही बदलाव जो है परमेश्वर चाहते हैं हम में से हर एक के जीवन में पाया जाए। So, my dear sisters, God wants us to change from day by day. He doesn't want us to be the same. और प्रभु चाहते हैं कि हम दिन पर दिन बदले, तो हमें एक समान नहीं होना है हर बात पे। There are many believers, instead of changing for the better, they become worse. और Many believers, instead of becoming better and better in their life, they go down. और बहुत सारे जो मसीह हैं वो बदलते तो नहीं है, पर वो बदतर से बदतर होते जाते हैं। Because they are paying more attention to worldly things, and because of that, they don't listen to the Holy Spirit. क्योंकि वो संसार की बातों में मन लगाते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते। See, now the order in verse 23 is that first our spirit, soul, and body. The Holy Spirit gives first preference to the spirit, then the soul, then the body. और वचन में जो एक क्रम बनाया गया है, आत्मा, प्राण और देह, पवित्र आत्मा जो है सबसे पहले कार्य हमारी आत्मा में करते हैं। But what about unbelievers? They give first preference to the body, the soul, and then the spirit. और अविश्वासियों के साथ क्या होता है, यही उल्टा हो जाता है। पहले वो देह को, फिर प्राण को, फिर आत्मा को। Yeah, that's what Jesus said. People in this world, they say, what shall we eat? What shall we drink? And how shall we clothe ourselves? That is what they keep on thinking about. और क्या सोचते हैं वो लोग कि क्या खाएं हम, क्या पहने, क्या अच्छा दिखने के लिए करें। Matthew chapter 6, Jesus said, but you must not behave like that. You must seek the kingdom of God first. That is the spirit of peace and joy and love. You must seek after God and his nature first in your life. और मत्ती 6 में वचन कहता है कि पर तुम्हें इस संसार का सदस्य नहीं होना है, तुम्हें खाने पीने के लिए यहाँ संसार में रहने के लिए नहीं जीना है। But you must seek after the kingdom of God.
और अब स्वर्ग जो स्वर्ग की है उसकी खोज में रहना है। That is the kingdom of God is peace and joy and love in the Holy Spirit. और परमेश्वर का राज्य जो है पवित्र आत्मा में प्रेम, आनंद और शांति है। So then Jesus said, all the other things God will take care. और जो अलग बातें होंगी हमारे जीवन की वो प्रभु उनका ख्याल रखेंगे। And then our spirit will be changed more and more like Jesus. And that is what God desires. और हमारा जो आत्मा है वो बदलता जाएगा प्रभु यीशु मसीह के समान, और यही प्रभु की इच्छा है। And the other things of our soul and body we will give less importance. और हमारे जो प्राण और देह है वो कम कम जो है हमारे जीवन में महत्व रखेगा। Because our body is going to go to die very soon, and our soul also will, we should be influenced by the Holy Spirit rather than by the body. और जो हमारा देह है वो तो नाश होने वाला है बहुत ही जल्दी, वो तो हम मर जाने वाले हैं, और हमारा जो आत्मा है वही प्रभु के साथ रहने वाला है। See, our soul means our intellect. We can be very clever and very intelligent and very talented, but that is not useful to God. God both, but our spiritual relationship and our spirit and our humility is more important to God. और जो प्राण जो है वो तो ऐसा ही सोचता है हमारी देह में होकर कि हम तो बहुत ही ज्यादा चतुर हैं, हम कितने समझदार हैं, कितना अच्छे हैं, कितने पढ़े लिखे, पर ये सब बातों का महत्व यीशु मसीह के लिए नहीं है। जितना हम दीन होंगे, नम्र होंगे, उतना ही परमेश्वर को भाएंगे। So God wants our emotions and our will and our thinking also to be controlled by the Holy Spirit. और प्रभु चाहते हैं कि हमारे जो भावनाएं हैं, हमारी जो अंदर की जो बातें हैं, सोच विचार है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित की जाए। So when we read the Word of God, our mind also is on the Word of God, and we behave like that. जब हम पवित्र वचनों को पढ़ेंगे तो हमारा मन भी उसमें लगेगा, और वैसे ही हमारा जीवन भी बदलता जाएगा। But if a believer keeps on watching all movies and all the worldly things, then his mind will be according, and emotions will be according to the movies. और यदि एक विश्वासी फिल्में देखे और उसी पे मन लगाए तो उसका मन भी उसी की तरह हो जाएगा। Or if they mix around lot with worldly type of people, then all the worldly people talk will come into their mind. और यदि संसार की जो लोग हैं उनकी बातों में मन लगाए तो वैसा ही उसका भी मन हो जाएगा। The Holy Spirit is watching over us. He wants us to change. He says down, leave all these things and think like Jesus think. और पवित्र आत्मा जो है हमारे हमारे बदलाव के लिए है, और वो हमें बदल रहा है, और वो कहता है कि वैसा ही सोचो जैसा प्रभु यीशु मसीह सोचते हैं। So whenever the Holy Spirit is speaking to you, it says, do not refuse to listen to the Holy Spirit. और जैसे ही प्रभु पवित्र आत्मा आपसे बात करे तो अपने अपने मन को कठोर ना करें। It says the previous verse in 1 Thessalonians chapter 5, verse 19. पहला थिस्सलुनीकियों 5 5:19. अध्याय 19 वचन। It's the previous verse. It says, do not quench the Spirit. आत्मा को ना बुझाओ। That means when the Holy Spirit speaks, don't ignore him, and he speaks very softly to us. So we must listen. But if we don't listen, then it's like throwing water on the fire. और पवित्र आत्मा जो है वो जो है हमें बहुत ही नम्रता से बात करते हैं, धीरे से बात करते हैं, हमें उनकी सुनना है, और यदि हम ना सुने तो वो आग में पानी डालने के समान है। The Holy Spirit wants our fire in our heart to increase for the Lord. और पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में आग देंगे कि हम परमेश्वर के समान बने। And it should become very much more, desire for God should become stronger and stronger with every year and every day. और हर एक दिन, हर एक साल दर साल हमारे जीवन की जो इच्छाएं हैं, मन की इच्छाएं, वो परमेश्वर के समान जीने के लिए वो बढ़ाते जाएंगे। And that happens only when I obey God. और ये तभी होगा जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम रहेंगे। The small things in life, the Holy Spirit will tell you, now you don't watch this program, you don't watch this YouTube program, don't mix around with these type of people. So we have to listen to that. और पवित्र आत्मा यदि कहे कि इस प्रोग्राम को मत देखो, यूट्यूब पे इस चीजों को मत देखो, तो हमें इस बातों को सुनना है। And take the Bible and read and try to understand and ask God to help you to understand. और अपनी बाइबल को उठाओ, वचन पढ़ो, और यदि समझ में ना आता है तो प्रार्थना करो कि आपको समझ में आए। The Holy Spirit will tell you to give thanks to God for everybody and everything. और पवित्र आत्मा बताएंगे कि हर एक बात के लिए धन्यवाद करो, हर एक का।
So he will remind us every day as a small as a teacher. He keeps on teaching us. और एक छोटे-छोटे बच्चों के समान छोटी-छोटी बातों से लेकर हर एक बात पवित्र आत्मा हमें समझाते रहेंगे कि शिक्षक की तरह। Yeah, and that is the reason that we have to become like little children. So the Holy Spirit can teach us. और Yeah, यही the Holy एक Spirit wants us. Yeah, the Holy Spirit wants to teach us like little children. और यही एक कारण है कि वचन कहता है कि बालकों के समान बनो ताकि हम छोटे बच्चों के समान पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाएं। That is why Jesus said, "You must get converted and become like little children, that the Holy Spirit can teach you every day." और इसलिए पवित्र यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम्हें बदल कर बालकों के समान छोटे बच्चों के समान होना है ताकि पवित्र आत्मा आपको हर एक दिन सिखाए। There are so many believers who don't want to listen, to become like little children. That's why Holy Spirit cannot teach them, and they do their own way. और इसलिए बहुत सारे विश्वासी जो हैं वो बदलना नहीं चाहते, बालकों के समान नहीं होते, तो पवित्र आत्मा उन्हें शिक्षा नहीं दे पाते हैं। So they remain in a very worldly way and worldly attitudes, and they fall into all sorts of sins. और फिर वो संसार में, संसार की बातों में गिर जाते हैं और वही पाप खुद भी करने लगते हैं। But God has a very good plan for each one of us. परमेश्वर के पास बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं हम में से हर एक के जीवन के लिए। So if nobody is obeying the Lord, you can obey the Lord and follow the Holy Spirit. यदि कोई ना मान रहा हो परमेश्वर की बात पर आप माने और पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। And you can grow spiritually very well, and God will be pleased with you. और फिर आप आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और प्रभु आपसे बहुत खुश होंगे। I was reminded of one sister called Madame Gayon. और एक बहन को मैं याद रखता हूँ जिसका नाम था मैडम गयों। She lived in France. और वो फ्रांस में रहती थी। And because she loved the Lord so much, she had so much persecutions. और क्योंकि वो प्रभु से बहुत प्रेम रखती थी इसलिए बहुत ज्यादा सताव भी था उनके जीवन में। And the main people who persecuted her were a husband and a servant, a lady, a female servant. और जो खास तौर से उनको परेशान करते थे वो उनका पति था और उनके घर में काम करने वाली नौकरानी। So, but through all these things, all the false things people said about her, she grew very close to the Lord. और ये सब गलत बातें जो उसके जीवन में हो रही थी उसके बावजूद भी परमेश्वर के लिए बढ़ रही थी। She had a pure heart. उसका मन जो था वो बहुत ही शुद्ध था। She did not become angry and bitter with people. वो कभी भी गुस्सा नहीं होती, कड़वाहट नहीं रखती है लोगों के प्रति। She wrote many beautiful songs, and she wrote a lot of good articles. और बहुत सारे अच्छे लेख लिखे हैं, बहुत सारे अच्छे गीतों को उन्होंने लिखा है। She lived about 300 or 400 years back in France. और 300-400 साल पहले वो एक वो जो थी महिला फ्रांस में रहा करती थी। So the Lord changed her so much in spite of all the difficulties and problems around her. और परमेश्वर ने उन्हें बहुत बदला है जब तक यहाँ तक कि उनके जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफें थी। So my dear sisters, God can change you and me. और इसलिए बहनों परमेश्वर आपको और मुझे दोनों को बदल सकते हैं। God is at work in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। And if we cooperate with Him, God will do this work nicely. और यदि हम सहयोग करें तो परमेश्वर इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। And you will be very close to the Lord. और फिर हम परमेश्वर के बहुत करीब होंगे। And you will see the Lord face to face. और फिर हम परमेश्वर को अपने आंखों से सामने के सामने देख पाएंगे। So thank God that He's changing us. और प्रभु का धन्यवाद करें कि हम हमें बदल रहे हैं। So my dear sisters, you can also share now how God has changed you so much after coming to the Lord in different areas of our life. और अब बहनों हमारे पास एक समय होगा कि हम बांटे कि कैसे प्रभु ने हमारे जीवन को बदला है जब हम मसीह में आए गए थे। There are so many areas in our way, speech, in our thinking, our worries, and so many things. God has changed our spirit and our inner life, so that you can always share and encourage one another. और हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें जितनी बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में बदली है, हमारी चिंताएं, हमारे दुख तकलीफें, बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर के द्वारा बदली गई है। So all sisters can one by one can start sharing, and briefly, if you have the Bible verse, you can share Bible verse. Otherwise, just give thanks to God for how much God has changed us. एक एक करके बहनें शुरू करें और वचन के द्वारा कह सकती हैं या फिर ऐसे भी धन्यवाद कर सकती हैं।
धन्यवाद देती हूँ। आज वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन किया है। प्रभु मुझे सिखा रहे इन दिनों में सोच विचारों के द्वारा। तो नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। लेकिन मेरे इंग्लिश बाइबल में लिखा है, बी केयरफुल हाउ यू थिंक, योर लाइफ इज शेप्ड बाय योर थॉट्स। तो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, मैं जो भी मेरे मन में विचार करती थी अधिकतर, तो वैसे ही मेरा स्वभाव हो जाता था या फिर मैं वैसे ही प्रैक्टिकली काम करती थी। और आज अंकल आप जो बता रहे थे, तो मुझे सिंपली प्रभु ने बताया कि मेरे सोच विचारों को हमेशा मुझे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देना है और प्रार्थना करनी है कि मैं पवित्र आत्मा मेरे सोच विचारों का ताबा लीजिए और मैं हमेशा वचन को मनन करूं। ऐसी मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। ये मुझे आज प्रभु ने प्रोत्साहन दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ और आज के वचन के द्वारा बहुत सारा प्रोत्साहन मुझे मिला है। और जैसे कि शुरुआती में ब्रदर ने कहा कि जब से हम मसीह में आए हैं तब से परमेश्वर हमें बदलने के कार्य में हैं। और हमने हमारे जीवन में देखा भी है, मैंने मेरे जीवन में देखा भी है कि जब से मैं मसीह में आई हूँ तब से उतार चढ़ाव बहुत सारे आए हैं, गिरे भी हूँ, पर परमेश्वर ने हमेशा मुझे सुधारने के लिए वो परमेश्वर ने हमेशा मुझे सुधारा ही है। हमेशा बहुत सारे साल तक मैं परमेश्वर से दूर भी रही, पर फिर भी परमेश्वर ने घुमा फिरा के परमेश्वर मुझे अपने पास लेकर ही आए, कैसे भी करके। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। और ये बात बिल्कुल सच है कि प्रभु मेरे जीवन की मतलब बदलाव कार्य में एकदम लगे हुए हैं कि मैं बदल जाऊं। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस वचन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती हूँ मैं हमेशा। क्योंकि जब मैं हमेशा अपने जीवन के लिए ऐसा ही, जब मैं नई नई परमेश्वर में आई थी और प्रभु ने मुझे बदला, और जब परमेश्वर ने मुझे बदला और मैंने पाप किए थे, और फिर मैंने प्रभु से बोला था कि प्रभु मुझे बताइए, कुछ ऐसा वचन मुझे बताइए जिससे मुझे ऐसा लगे कि हाँ प्रभु आपने मुझे क्षमा कर दिया है। तो परमेश्वर ने मेरे मन में और यही वचन डाला था कि जैसा दूसरा कुरिन्थियों 5:17, तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। ये वाला वचन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला था, मैंने पढ़ा था और बार बार ये वचन सामने आ रहा था। बार बार किसी न किसी तरीके से, कभी बाइबल पढूं तो आ रहा था, या फिर किसी के द्वारा, और या फिर जब मैं पहले कलीसिया में जाती थी तो वहां पर जो भाई थे वहां पर प्रचार करते थे, वो वहां पर उन्होंने ये वचन बोला, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि प्रभु, क्योंकि ये वचन एकदम सटीक है, मतलब कुछ भी इसमें ऐसा ना समझने वाला कुछ नहीं, क्योंकि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। तो मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद कि पुरानी बातें मेरे जीवन से बीत गई, देखो ये सब नई हो गई है। और मुझे बहुत सारा परमेश्वर हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा जब पहले ऐसा ही करती थी, ऐसा कहती थी अपने जीवन में कि प्रभु ऐसा कोई पाप मेरे जीवन से ऐसा, मतलब हर एक पाप मेरे जीवन से हुआ है, हर एक पाप। ऐसा कोई पाप ऐसा नहीं है, मतलब बाइबल में कि मैंने ना किया हो, प्रभु ने मना किया हो और मैंने ना किया हो। मेरे प्रभु, मैंने हर एक पाप किया है, हर पाप करके मेरे छोड़ा है। तो इसलिए परमेश्वर ने मुझे बहुत बदला है, जिसका बोलते हैं ना, मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसका बहुत क्षमा होता है तो उसको मतलब प्रेम भी ज्यादा होता है। मैं अच्छे से बता नहीं पा रही हूँ वचन, पर है एक जगह कहीं पे। तो जिसका बहुत क्षमा किया जाता है वो बहुत ज्यादा प्रेम भी रखता है, ऐसा। तो परमेश्वर ने मुझे बहुत ज्यादा क्षमा किया है और अभी भी परमेश्वर मुझे बदल रहे हैं। बहुत सारा बदलना बाकी है, पर अभी मुझे मेरे जीवन में शांति है, आनंद है परमेश्वर के साथ। पहले बहुत सारा चिंता, क्योंकि जो पाप करते हैं वो हमेशा चिंता में, डर में और इसी में सब में रहते हैं। उनको लोगों का डर रहता है कि लोग देख लेंगे, क्या सोचेंगे, ये होगा वो होगा। क्योंकि हम लोगों के लिए, मैं लोगों के लिए जीती थी कि क्या होगा अगर ये सब इनको पता चल जाएगा, तो उनको पता चल जाएगा। तो पर अब परमेश्वर के लिए जीने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि अब अगर लोगों को पता भी चला तो हमें मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है वो सच्चा है, सच्चा परमेश्वर है, उसके पीछे चलने में कोई डर नहीं होता है। तो इसलिए परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर का प्रेम मेरे साथ सदैव रहता है।
और इसी में को मैं इंजॉय कर रही हूँ। मेरी लाइफ अब बहुत अच्छी है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आमीन। मैं भी प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर हैं और ना केवल जिंदा परमेश्वर हैं, वो विक्ट्री, ही इज अ विक्टोरियस गॉड, सो आई ब्लेस हिज नेम। मुझे भी कई एक दिन में ऐसा हुआ था, मतलब पिछले फ्यू मंथ्स में ऐसा हुआ है कि कई बार जो विश्वास है बहुत ही बुरी तरीके से हिल गया था। सो बहुत सारे कंफ्यूजन्स एंड बहुत सारे प्रश्नों के बीच में जूझ रही थी। एंड ऐसे ऐसे सवाल आए मेरे दिल में जो मैंने कभी मेरी जिंदगी में पहले कभी सोचा ही नहीं था। उस तरीके के सवाल ऑन द फेथ, ऑन माय फेथ इन क्राइस्ट। एंड मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कभी मेरे हाथ को छोड़ा ही नहीं। पर एट द सेम टाइम हर एक उस प्रश्न को जो मेरे मन में उठता था, he didn't answer it immediately, but उन्होंने हर एक ऐसे सिचुएशन से मुझे ले गए थे जिनमें से through that he answered those questions in his own way. See the way मैं जिस तरीके से वचन को समझती हूँ is very carnal, right? But जब पवित्र आत्मा अपने भेद में से सिखाते हैं and he teaches that is not just a revelation, but it actually makes you to believe Christ in the way that he wants you to believe. ये मेरा अब तक का अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। एंड विशेष करके when that unbelief strikes, I've never known that kind of an unbelief ever, but I thank him that he showed me that, because it is so dark, it is so godless, that the darkness is too difficult, it's very overwhelming, and it completely disrupted my entire thinking and my foundation. And through it all, while I had lost all hope, and many times it does strike back again, the unbelief, but Christ never let go. And विशेष करके यूहन्ना 14 उसमें से जो 11वां वचन है, and he grips my heart through all his words, right? His word is powerful and his word is life-giving. I really praise and thank him that he has given his word to us and his Holy Spirit to understand what he wants us to understand. So believe me, for my work's sake, so मेरा सोच, मेरा समझ, I know how carnal it is and it is wrong, ये समझ भी है, but then he helped me to understand his ways are so different, his works are so different, and they're pure and they are good, and through it all he helped me to hang on to that faith that he helped me. So I praise and thank him. And I want to thank him that it's not just an individual experience, but even through the fellowship and through various situations, no matter how and what interpretation I take it, but the Spirit of God intervenes and he does it in his own style. So I praise and thank God. I want to thank God for this fellowship. I want to thank God for everyone who is upholding each other in prayer. This is a big miracle. So I thank God. Amen. प्रभु का वचन कहते हैं कि from glory to glory he is changing me. एक महिमा से महिमा तक से प्रभु हमको बदल रहा है. From earthly things to the heavenly. संसारिक चीज से अनंत heavenly things, स्वर्गीय चीज से तक हमको पहुंचाने वाला है. हमको आर्थिक चीज, संसारिक चीज से प्रभु हमको निकाल रहा है to heavenly things. तो प्रभु पवित्र आत्मा यही हमारा जीवन में काम कर रहे हैं. हम सो संसारिक चीज के लिए काफी ध्यान देते हैं. प्रभु कहते हैं इस पर कम ध्यान दे दो और हेवनली थिंग्स से जो कुछ भी आप करते हैं प्रभु की महिमा के लिए करो. जो कुछ भी, हर की बाइबल पढ़ो, ये करते हो, अपना घर का काम करो, ये सब प्रभु की महिमा के लिए करो. तो आपका हमारा जीवन जब तो ऐसा करते हैं तो बदल जाएंगे. हमारा मन का विचार भी बदल जाएंगे, हमारी भावनाएं भी बदल जाएंगे और अपना इच्छा जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु की महिमा के लिए करेंगे. तो आए सिस्टर्स, वी थैंक यू एंड प्रेज यू. सबके लिए प्रार्थना करना, आपका प्रभु का आशीष और पवित्र आत्मा आपके सबके ऊपर रहे.
And let the fellowship of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके ऊपर रहे